Hello, good morning to the students. Now, today my lecture is on the stress strain curve. So yesterday, I have given you the difference of the ductile material as well as the brittle material. So as you know, as the nature of the ductile material and the brittle material is different, then the stress strain curve in case of ductile material and stress strain curve in case of brittle material, that is different. So first of all, I will draw the stress strain curve for the ductile material. So my lecture starts from this stress strain curve for ductile material. Stress strain curve for ductile material. Stress strain curve for ductile material. This is my lecture today. So let us first we will draw the stress strain curve for the ductile material. So what we have to see here, we have to find the different points on the stress strain curve in order to calculate the properties of the material. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हम ड्रा करेंगे उसके ऊपर we will find the different points, we will calculate the different points on the stress strain curve, and on the basis of these points we will find the different properties of the material. So let us first draw the stress strain curve, right? तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रा करेंगे हम. So this is point O. This is called the initial point, right? This is your y-axis. This is y-axis, and this is your x-axis. This is your x-axis, right? This is y-axis, and this is x-axis. So on the y-axis, we will show the stress. तो y एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे? स्ट्रेस को लेंगे, दैट इज MPa, मेगा पास्कल. तो स्ट्रेस इज ऑन द y एक्सिस, तो सिग्मा जहां पे हो गया MPa, राइट, ऑन द y एक्सिस, एंड एप्सिलॉन स्ट्रेन दैट इज along the x axis, that is strain, and we will take percentage of strain. So strain along the x-axis and stress we will take along the y-axis. First we will draw y-axis, vertical axis as well as the horizontal axis, and this is your point O. This is called the initial point, right? जहां तक आपको समझ आया पॉइंट. क्या करेंगे हम? स्ट्रेस को y-axis के ऊपर लेंगे और जो स्ट्रेन होगी वो आपकी x-axis पे लेंगे. और जहां पे जो एप्सिलॉन x मैंने आपको बताया, ये एप्सिलॉन x क्या है? दैट इज एप्सिलॉन परसेंटेज. दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज स्ट्रेन. सो परसेंटेज स्ट्रेन मींस जो आपको स्ट्रेन दी होगा, you multiply 100, so that is percentage of strain. Why we take percentage of strain here? क्यों हम ये percentage of strain लेते हैं? As you know, the value of the strain is very less. The value of the strain is very less. You can say it is 0.0
001 mm, 0.002 or 0.003. So to enhance the scale, what we do? We just multiply the strain with the 100. And when we multiply the strain with the 100, you can say this is the percentage of the strain. So up to this point, this is clear. So percentage of strain, this is very important to note down. Sometimes in the numerical, the problem is given in the percentage of strain, but we don't actually neglect this thing, and we calculate the problem as per the simple strain. We are not taking the percentage of strain, so there are every chance the mistake there. So you must understand that what is percentage of the strain, and to draw the stress strain curve along y-axis, we take sigma stress in MPa megapascal, unit जो इसका होगा, and strain that we will take percentage of strain. So this is the first point. First you start this, right? Now इसमें first step क्या है? First step लेते हैं हम. First step क्या है इसमें? Now you take the specimen. Now you take the specimen on which you have to draw the stress strain curve. कोई भी एक specimen है जिसके ऊपर आप स्ट्रेस स्ट्रेन ड्रा करना चाहते हैं, और जहां पे हम स्पेसिफिक क्या लेंगे, डक्टाइल मटेरियल का लेंगे, माइल्ड स्टील, यू कैन से लो कार्बन माइल्ड स्टील, दैट इज द डक्टाइल मटेरियल, और उसी के ऊपर मैं ये कर्व जो है ड्रा कर रहा हूं, ठीक है. सो वी विल टेक द स्पेसिमेन. इनिशियली on the specimen there is no load, right? So this is the point O. Suppose means this is the point O. At point O, there is no load on the specimen. So you can say at point O, P क्या था आपका, 0 था. P क्या है, 0 है. Means क्या होगा आपका सिग्मा, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, एंड एप्सिलॉन, परसेंटेज ऑफ एप्सिलॉन लेंगे हम, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0, राइट. सो इनिशियल पॉइंट के ऊपर क्या है, व्हेन वी जस्ट स्टार्ट टू अप्लाई द लोड, बिफोर दैट दिस पॉइंट O, दिस रिप्रेजेंट दैट सिग्मा इज 0 एंड epsilon is 0, right? Now we just start applying the load. जब हम लोड को अप्लाई करेंगे, तो we just start to apply the load. जब हम लोड को अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब लोड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, J curve. This is point A. You can say this is your point A. Up to this point A, up to this point A, this is a straight line. You can see here. This is a straight line. So means you can say स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, यहां पे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इनिशियली व्हेन वी अप्लाई द लोड. सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होगा, इनिशियली जो आपका होगा स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा. सो व्हेन वी अप्लाई द फर्स्ट स्टेप दैट नो लोड, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, देखिए सेकंड स्टेप जो है, व्हेन वी अप्लाई द लोड, राइट, इनिशियली सिग्मा प्रोपोर्शनल टू E. इनिशियली क्या होगा, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन.
stress proportional to strain, sigma proportional to epsilon initially. So you can say that up to the point A, stress is proportional to strain, and when the stress is proportional to strain, तो आपको क्या मिलेगा? Up to the point A, you will get a straight line. You will get the straight line up to the point A. Or you can say here, R sigma is equal to E upon epsilon. Sigma is equal to E upon epsilon. अब देखिए, जैसे हम हुक्स लॉ में पढ़ा है, हर जगह हमने पढ़ा है कि जो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा तो जहां पे स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं कि ये आपको स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगी। देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन, दिस इज द इक्वेशन। आपको जहां तक ये इक्वेशन मिलेगी। अब देखिए, सिग्मा आपका क्या है? ये आपका बाई है, क्योंकि सिग्मा आप कहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाई एक्सिस के ऊपर। तो अगर मैं कहता हूं कि बाई इज इक्वल टू ई इंटू एक्स, एप्सिलॉन क्या है? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, बाई इज इक्वल टू ई इंटू एक्स। और आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मालूम होगा कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। दिस इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, यही होती है ना इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फिर एम इज द स्लोप। एम क्या है इसमें? एम इज द स्लोप। So this is the equation of the straight line. So ये जो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, राइट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई एक्स। तो अगर आप इसको इसके इक्विवेलेंट इसके करें, क्योंकि आपका सिग्मा जो है दिस इज ऑन द वाई एक्सिस, एप्सिलॉन ऑन द एक्स एक्सिस। सो यू कैन से ये आपका क्या बनेगा? ये इक्वेशन, ये आपकी सिग्मा इज इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन where E is the slope of the line. जैसे M वहां पे slope of the line था, तो जहां पे आपका E is the slope of the line. So it means कि up to the point A you will get the straight line. So this is the straight line. मैंने up to the point A इसको straight line रखा, राइट? जहां तक आपको क्लियर है कि मैथमेटिकली आप समझिए why when we say according to Hooke's law stress is directly proportional to strain, तो ये मैंने आपको बताया because here I am taking stress along the y-axis, strain I am taking along the x-axis, and if I am just compare this equation with the equation of the straight line, that is y is equal to mx. So if this is the equation of the straight line, so you can say sigma is equal to E upon epsilon. This is also equation of the straight line. So we have draw the straight line. M is the slope of the straight line. तो अगर मैं कहूं कि इसकी स्लोप आपको फाइंड आउट करनी है कि स्लोप इसकी कितनी होगी, तो स्लोप इसकी किसके बराबर होगी? E के बराबर। E is the slope of the straight line. E क्या होगा? जो आपकी इस केस में है, इस केस में आपका E is the slope of the line. तो E जो है, E is the slope, right? E is the slope of OA. जहां तक क्लियर है आपको? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि ये जो कर्व ड्रा हुई, when we start applying the load and we go on increasing the load up to the point A, the load जो हम अप्लाई करेंगे up to the point A, stress is directly proportional to strain. और इस पॉइंट के ऊपर क्या स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, सो वी विल गेट द स्ट्रेट लाइन। तो मैंने ये आपका स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रा किया, ठीक है? अब देखिए अगला पॉइंट,
नेक्स्ट वन, सेकंड स्टेप क्या होगा इसके बाद देखो, उसको मिटा लेते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, सपोज करो आपका सेकंड स्टेप लेता हूं मैं इसका, इफ आई इंक्रीज द लोड बियॉन्ड पॉइंट ए, अगर मैं लोड को पॉइंट ए के ऊपर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, I will get slightly curved। तो जहां पे मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर इसको दोबारा इंक्रीज करो तो क्या होगा, ये स्लाइटली ये लाइन जो है आपकी ये स्लाइटली कर्व आपको मिलेगा, राइट। सो अप टू द पॉइंट बी, अप टू द पॉइंट बी ये स्लाइटली कर्व लाइन है आपकी, राइट। सो दिस इज, यू कैन से दिस इज द पॉइंट बी। इफ आई विल इंक्रीज द लोड बिहाइंड पॉइंट ए, आई विल गेट द स्लाइटली, द कर्व इज स्लाइटली कर्व्ड लाइक दिस, ठीक है ना, कर्व लाइन यू कैन से। तो मैं मुझे कर्व जो आपको मिलेगी ये स्लाइटली कर्व होगी, दिस इज द पॉइंट बी, राइट। तो एट पॉइंट बी, जो एट पॉइंट बी आपको मिलेगा, यू कैन से एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या है, दिस इज द इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी क्या है, इलास्टिक, पॉइंट बी दिस इज द इलास्टिक लिमिट। Let us understand what is the elastic limit। देखिए, जब मैं पॉइंट ए के बाद लोड को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, थोड़ी सी जो कर्व हमें मिलेगी ये थोड़ी सी बैंड होगी और ये पॉइंट बी तक जाएगी। जो पॉइंट बी हमें मिलेगा, जो पॉइंट बी हमें मिलेगा, ये पॉइंट बी होगा आपका इलास्टिक लिमिट। इसका क्या मतलब है, इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है कि इसमें जो डिफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, इलास्टिक होगी, टेम्परेरी होगी, स्मॉल होगी, राइट। इसमें जो डिफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, टेम्परेरी होगी और स्मॉल होगी। इफ आई रिमूव द लोड एट द पॉइंट बी, अगर मैं पॉइंट बी के ऊपर लोड को रिमूव करूंगा या करता हूं तो व्हाट हैपेंस, क्या होगा, मटेरियल विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो इट मींस इन दिस केस, इफ आई विल रिमूव द लोड हियर, इन दिस केस योर सिग्मा दिस इज इक्वल टू 0 एंड एप्सिलॉन जो स्लाइटली डिफॉर्मेशन हुई थी दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, राइट। सो यू कैन से इफ आई रिमूव द लोड, if I remove the load at point B, elastic limit, so means at point B, if I remove the load, तो क्या होगा आपको, जो सिग्मा होगा आपका, सिग्मा दिस इज इक्वल टू 0 एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। ये क्यों सिग्मा 0 आएगा, क्यों एप्सिलॉन 0 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अप टू द पॉइंट बी देयर इज ए इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, दिस इज वेरी स्मॉल, वेरी टेम्परेरी, और इस पॉइंट के ऊपर इफ आई विल रिमूव द लोड, व्हाट हैपेंस, द मटेरियल विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मींस जो स्लाइट डिफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसे केस में अगर इफ आई रिमूव द लोड मींस सिग्मा इज 0, तो ऐसे केस में जो आपकी डिफॉर्मेशन होगी एप्सिलॉन जो होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। सो दिस इज अप टू द पॉइंट बी। ये कहां तक है,
जो पॉइंट बी तक आपको ये चीज मिलेगी, अप टू द पॉइंट बी यू विल गेट दिस, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट बी। तो ये आप कह सकते हैं दिस पॉइंट बी इज इलास्टिक लिमिट। Point B is elastic limit, right? अब ये स्टेप हो गया, इसके बाद फिर हम लोड को इंक्रीज करते हैं, राइट? सो अगर इसके बाद भी लोड इंक्रीज अगर हम करेंगे, so if I increase the load behind पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के behind भी मैं लोड इंक्रीज करता हूं तो ये कर्व इस तरीके से जाएगी, राइट? ये कर्व इस तरीके से जाएगी, राइट? तो look at. So if I increase the load, थर्ड स्टेप अगर मैं इसमें लेता हूं आपका, थर्ड स्टेप आपका जो है, इफ आई इंक्रीज द लोड बिहाइंड द पॉइंट बी,
पॉइंट बी तक तो मैंने आपको बताया दिस इज द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब पॉइंट बी के बाद क्या होगा, इफ आई इंक्रीज द लोड पॉइंट बी, द कर्व विल गो ऑन इंक्रीजिंग or the curve will go in the upward direction, right? तो ये कर्व जो है अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर को जे जाएंगे। सपोज आई विल टेक द पॉइंट बिहाइंड ए, सॉरी बिहाइंड बी के ऊपर मैं एक पॉइंट लेता हूं जहां पे दिस इज द पॉइंट यू कैन से, एंड इफ आई रिमूव द लोड, इफ आई इस पॉइंट के ऊपर आई रिमूव द लोड, इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या किया, लोड को रिमूव किया, तो क्या होगा, जब लोड को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, एक मटेरियल आपका अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आएगा, राइट। मटेरियल क्या होगा, दैट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बट द प्रॉब्लम इज जहां से क्या होगा, ये एक अनलोडिंग कर ये नीचे आएगी जहां तक, बट ये जहां पे आके मिलेगी अप टू दिस पॉइंट, बिकॉज बिहाइंड पॉइंट बी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहाइंड पॉइंट बी के आगे क्या होगा, देयर इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्या होगा, देयर इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी, राइट। देयर इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पॉइंट बी के बाद, तो जब मैं इसको जहां पे लोड रिमूव करूंगा तो क्या होगा, आपका सिग्मा तो क्या है, 0 हो जाएगा, राइट। जो आपकी इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन थी वो क्या होगी, वो भी 0 हो जाएगी, लेकिन जो इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी तो मैं कहता हूं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज 0.2% दैट आई हैव शोन ऑन दिस एक्सिस। किसके ऊपर डिफॉर्मेशन, किसके ऊपर हम शो करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर, बिकॉज दिस इज योर एक्स एक्सिस, हियर आई एम शोइंग द स्ट्रेन, राइट। तो 0.2% जो है दिस इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये क्या है, जहां से लेकर इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो 0 हो गई, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है जहां पे मैंने 0.2% को मार्क किया लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, दिस इज द 0.2%, तो जो जहां से कर्व आपकी ड्रॉप होगी, जो लाइन जो जहां से कर्व ड्रॉप होगी, जो लाइन बनेगी, फर्स्ट पॉइंट इज दिस लाइन इज पैरेलल टू OA, ये जो लाइन होगी ये किसके पैरेलल होगी, ये जो OA लाइन थी, दिस इज पैरेलल टू OA, एंड दिस विल मीट ऑन दिस एक्स एक्सिस एट पॉइंट 0.2%। पॉइंट समझाया, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 0 बट एप्सिलॉन डज नॉट इक्वल टू 0। एट पॉइंट बी क्या होगा, सिग्मा तो 0 होगा, लेकिन जो एप्सिलॉन होगा वो 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो टोटल डिफॉर्मेशन जहां तक होगी दैट इज इक्वल टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपकी 0 हो जाएगी, बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो इसमें रहेगी, and this if I say it is 0.2%, so this curve will drop from here and this will meet at this point, जिस पॉइंट के ऊपर जहां पे मीट करेगी, तो जे जो पॉइंट आपका शो करेगा जहां से लेकर जहां तक, दिस इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड दिस इज 0.2%। दिस इज क्लियर टू यू। अब ये जो कर्व है इसको हम कहते हैं अनपैरेलल कर्व, राइट, इसको क्या बोलते हैं, अनपैरेलल कर्व, sorry, unloading curve. This curve, so this is your called unloading curve. ये जो है, this is your unloading curve, right? तो ये जो आप जहां से लेके जहां तक, this is called the unloading curve. Now characteristics क्या है? What is the characteristics of the unloading curve? Characteristics of
अनलोडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनलोडिंग कर्व क्या होगा? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दिस कर्व, जहां से लेके जहां तक जो अनलोडिंग कर्व होगी, दिस इज पैरेलल टू अनलोडिंग कर्व पैरेलल टू OA, right? Parallel to OA, and if the slope of OA is equal to E, कैसे कहा? क्योंकि ये आपका था OA, क्या था आपका? OA is equal to sigma is equal to E upon E into epsilon. तो इस केस में OA के में स्लोप क्या होगी आपकी? स्लोप क्या होगी? स्लोप क्या है इसमें? स्लोप इज इक्वल टू E. इसकी स्लोप OA की क्या है? दिस इज E, एंड इफ द स्लोप ऑफ दिस E, दिस अनलोडिंग कर्व, दिस इज पैरेलल टू दिस, सो इट मींस द स्लोप ऑफ द अनलोडिंग कर्व दैट इज आल्सो इक्वल टू E. तो ये जहां पे लिख लेते हैं, फिर बता देंगे स्लोप ऑफ अनलोडिंग, slope of unloading curve, this is equal to E. समझा है? Slope of unloading curve, this is equal to E. Up to this is clear? ये आपको क्लियर हो गया कि अनलोडिंग कर्व क्यों आई यहां पे? देखिए दोबारा बता दो, देखिए A से B तक जो आपकी डिफॉर्मेशन थी, दैट इज प्योरली इलास्टिक, राइट? अब जब B के बाद मैंने लोड को इंक्रीज किया, if I increase the load behind the point B, what happens after the point B? ये जो कर्व आप शो करेंगे आगे जाएगी, the curve will go up. That is the plastic deformation. That is what? That is the plastic deformation behind the point B, right? So if I will take, suppose if I will take some point on the point B and I just remove the load at that point, what happens? क्या होगा? जहां से एक आपकी अनलोडिंग कर्व जो है, we will draw the unloading curve from this point. Why? Because I have removed the load. When I have removed the load, it means the stress is zero. Means stress is zero. When the stress is zero, but the epsilon does not equal to zero. इस केस में जो एप्सिलॉन होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा. अब पॉइंट इस तो कहीं क्यों नहीं होगा? जैसे मैंने बताया, दिस इज अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होगी वो जीरो नहीं होगी, राइट? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपकी जीरो नहीं होगी, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन जीरो होती है, बट जो उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी वो जीरो नहीं होगी. This I will say if it is 0.2%, if I will take the plastic deformation 0.2%, so then I will mark the point on x-axis 0.2% on that, and draw the unloading curve which is parallel to the line OA on this point, and that will meet on this point at x-axis. ये जो कर्व जो होगी, this is called the unloading curve, and this is parallel to the जो आपकी कर्व है OA, इसके पैरेलल होगा. तो जो OA है, this I have shown you that is the equation of the straight line, and here the slope of OA is equal to E, that is Young modulus of elasticity. So the slope of the unloading curve, that is also equal to E, right? You understand up to this point? Now next you see, if I go on increasing the load, then see what happens if I go on increasing the load. So, अब देखिए, जहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पे क्या है, कि किस तरीके से 0.2% आया है. इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि up to the point B, you know there is a elastic deformation, right? So means up to the point
V क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। मीन्स जहां पे हम कहते हैं एप्सिलॉन जो है 0.1%, राइट, सपोज टू द पॉइंट 0.1%, राइट। So behind the point V, there is a plastic deformation, right? Behind the point V. तो behind जो आपका होगा, behind the point B क्या है, इसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। सो behind the point B जो आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मैं कहता हूं कि ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपकी है 0.2%। क्या तक क्लियर है आपको, राइट। सो टोटल डिफॉर्मेशन कितनी हो जाएगी अप टू दिस पॉइंट, सो टोटल डिफॉर्मेशन दिस इज इक्वल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। टोटल डिफॉर्मेशन दिस इज इक्वल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दैट इज 0.1% plus 0.2%, means this is equal to 0.3%, right? 0.3%। ये जहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि इस पॉइंट तक जो आपकी टोटल डिफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दैट इज 0.3%। नाउ द पॉइंट कम्स, जो मैं आपको द्वारा मैथमेटिकली समझाना चाहता था कि ये जो कर्व है कि किस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर 0.2% के ऊपर आके हुई है। देखिए, इफ आई रिमूव द लोड, ये इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या करता हूं, मैं लोड को रिमूव करता हूं। तो जब मैं लोड को रिमूव करूंगा मींस स्ट्रेस क्या होगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो सडनली क्या होगा, एक कर्व जो है जहां से ड्रॉप करेंगे इस तरीके से, दैट कर्व इज कॉल्ड द अनलोडिंग कर्व, दैट कर्व इज अनलोडिंग कर्व। अब ये पॉइंट ये है कि ये कर्व जो है, जो आपका एक्स एक्सिस है, किस पॉइंट के ऊपर मिलेगी, क्योंकि इसमें जैसे आपको पता है जब मैं लोड को रिमूव करूंगा तो ये कर्व ड्रॉप करेगी जहां तक जो है, दैट इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन 0.1%, राइट। क्या है, 0.1% इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जब मैं लोड को रिमूव करूंगा तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 हो जाएगी। तो इस केस में जो आपका 0.1% है ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितनी रही, अगर मैं टोटल डिफॉर्मेशन की बात करता हूं तो दिस इज इक्वल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशन जब मैं लोड को रिमूव करूंगा तो 0 हो जाएगी, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो आप कह सकते हैं टोटल डिफॉर्मेशन इस केस में क्या रहेगी, इफ आई विल रिमूव द लोड, दैट इज 0.2%। सो द कर्व, अनलोडिंग कर्व, दैट विल मीट एट दिस पॉइंट, जहां से जो मैं 0.2% से जो मैं इसके पैरेलल जो लाइन ड्रा करूंगा, राइट, इधर से ड्रॉप करेगी और ये 0.2% के ऊपर मिलेगी। ये अनलोडिंग कर्व और ये कर्व जो है पैरेलल है, तो इसलिए इसकी जो स्लोप होगी अनलोडिंग कर्व की, दिस इज इक्वल टू द जंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। जहां तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद में दोबारा लोड को उड़ाता जाता हूं, कर्व जो है ये जहां तक पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक सडनली जहां पे क्या होता है, सडनली एक जहां पे जिस पॉइंट के ऊपर ये कर्व इस तरीके से ड्रॉप करती है, राइट, दिस इज पॉइंट C एंड दिस पॉइंट इज D, राइट।
ये कर्व क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर ड्रा करें। अब मुझे बताइए एट पॉइंट सी, दिस पॉइंट सी, दिस इज कॉल्ड द अपर यील्ड पॉइंट, एंड पॉइंट डी, दिस इज कॉल्ड द लोअर यील्ड पॉइंट। बट before understanding the upper yield point and the lower yield point, first we will understand that there is the yielding process. Yielding जहां पे होगी, so what is the yielding process? जब मैं जहां तक लोड को इंक्रीज करता हूं तो उसके बाद क्या होता है कि when I increase the load, what happens? The bonds between the atoms, they start, they are broken up. जो बॉन्ड एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा मटेरियल में एटम्स है, दे आर ऑल कनेक्टेड बाय द बॉन्ड्स, सो बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग, गोइंग टू ब्रेक, द बॉन्ड्स स्टार्ट गोइंग टू ब्रेक। तो इस पॉइंट के ऊपर बॉन्ड जो है ब्रेक करना शुरू कर देंगे, एंड एटम विल स्टार्ट फ्रीली फ्लोइंग इनसाइड द मटेरियल। अब इस पॉइंट को समझो, बॉन्ड ब्रेक करेगा एट पॉइंट सी के ऊपर, द बॉन्ड विल स्टार्ट ब्रेकिंग, राइट, एंड द एटम स्टार्ट फ्रीली फ्लोइंग इनसाइड द मटेरियल, राइट। तो क्या होगा, व्हेन द एटम विल स्टार्ट फ्रीली फ्लोइंग इन द मटेरियल, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द एटम्स विल बी लेस। जो एटम्स का रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेस होगा, मींस लोड इसमें आपका ड्रॉप होगा, और इसमें आपकी यील्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी और आपकी डिफॉर्मेशन होगी, राइट। तो इमीडिएटली एट पॉइंट सी द एटम्स आर ब्रोकन बिटवीन द बॉन्ड एंड द एटम्स स्टार्ट फ्रीली फ्लोइंग इनसाइड द मटेरियल। द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल will immediately decrease, or you can say will immediately decrease when the atoms start flowing. The resistance of the material will immediately decrease, and this comes to the point D, and then resistance becomes constant because atoms तो flow कर रहे हैं. There is no need to apply the load, or you can say the resistance of the material that is constant. But the resistance of the material is constant, but the deformation is very large, and that deformation that is at the constant resistance. तो constant resistance के ऊपर जो deformation होगी, ये आपकी deformation होगी constant resistance के ऊपर, and it is like a horizontal line. कैसे होगी ये? horizontal होगी. horizontal क्यों होगी? क्योंकि जो आपका लोड है वो क्या रहेगा, इसमें constant रहेगा. रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा. अगर आप इसको इसमें देखें तो लोड तो आप इंक्रीज नहीं कर रहे हैं. पहले जहां पे लोड था आपका दिस पॉइंट के ऊपर, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज हियर, मींस जो हम लोड यहां पे शो करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर P, बेसिकली दिस इज नॉट द एक्सटर्नल लोड, दिस इज द, ये क्या है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. सो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. So you can say at the point C, the internal resistance of the material is very high, right? So immediately at point C, what happens? The bonds between the atoms that will be broken, atoms starts freely flowing inside the material, and the resistance of the material becomes constant. Resistance of the material becomes constant because we don't need any load. We don't need to increase any load. So whatever the load is there, that will decrease. And at constant load, you can say, at constant load, the yielding process will start. What is the yielding? First of all, what is the yielding? Yielding is the deformation at constant resistance. Yielding क्या है? Yielding is the प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन एट द कांस्टेंट रेजिस्टेंस. तो जहां पे आपका यील्डिंग प्रोसेस होगा इस पॉइंट के ऊपर, सो दिस इज द कांस्टेंट पॉइंट. सो हियर यू कैन से, ये जो सी पॉइंट है, दिस इज द अपर यील्ड पॉइंट एंड डी इज द
lower yield point. Now I will explain it and write down here in this side. So first my point is, I think you have understood it, कि देखिए आपका C ऊपर क्यों था और एकदम C जो है वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गया? क्योंकि जब आपको एटम्स को ब्रेक करना था तो क्या होगा, उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो लोड होगा, वो क्या होगा, बहुत हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। और जब इतने तक आपका लोड जो है, इस पॉइंट तक आपका जो लोड होगा, उसके बाद क्या होगा, जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे फ्रॉम द बॉन्ड्स एंड दे विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रीली इनसाइड द मटेरियल. देन वी डोंट रिक्वायर एनी लोड, और यू कैन से एट द मिनिमम लोड द एटम स्टार्ट, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा लोड चाहिए, और जब एटम्स जो है फ्रीली मूव करेंगे तो आपको कम लोड चाहिए. यू कैन से यू मस्ट हैव लेस लोड एज कंपेयर, लेस लोड इन केस ऑफ freely movement of the atoms in as compared to the load that we need for breaking the atoms, breaking the bonds of the atom, right? तो ये कांस्टेंट लोड के ऊपर यील्डिंग प्रोसेस होगी. आई थिंक जब अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद मैं इसको बताता हूं, एक पॉइंट को डिफाइन करता हूं, लिखता हूं. अब इसमें देखिए, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूं. सो पॉइंट सी क्या है इसमें, आप पॉइंट सी इसको हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. पॉइंट सी, दिस इज द अपर यील्ड पॉइंट, दिस इज अपर यील्ड पॉइंट. सो इसका क्या डेफिनेशन है, द लोड एट विच द यील्ड स्टार्ट, राइट, जिसके ऊपर द लोड एट विच द यील्डिंग प्रोसेस विल स्टार्ट, यू कैन से दैट इज द अपर यील्ड पॉइंट, राइट. तो अपर यील्ड पॉइंट क्या है, so upper yield point means the load at which the material starts to yield. The load at which the material starts to yield. अब देखिए यील्ड का मीनिंग क्या है, यील्ड मीन्स क्या है, इसका यील्ड का मीनिंग लेट अस अंडरस्टैंड. वो कहते हैं जिस लोड के ऊपर मटेरियल जो है यील्ड करना स्टार्ट करेगा, राइट. यील्ड का क्या मतलब है, यील्ड का मतलब है द एटम्स, आई कैन से द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स will start to break, right? The bonds between the atom will start to break. तो जो मटेरियल के बीच में जो आपके एटम्स होंगे वो क्या है, आपको पता है, दैट इज दे आर जस्ट कनेक्टेड बाय ईच अदर विद द बॉन्ड्स. सो द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स दैट विल गोइंग टू ब्रेक एट दिस पॉइंट C. So at this point means we have to apply the more load, or you can say when the yield will start we require the more load, हमें ज्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा, राइट. या यू कैन से उस वक्त क्या होगा कि एटम्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट. उसमें एटम्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एंड वी विल अप्लाई मोर लोड एट दिस पॉइंट C. सो यू कैन से पॉइंट C के ऊपर the process of yield will start, right? The process of the yield will start means the atoms between the bond will start breaking down, right? तो उसके लिए हमें लोड क्या होगा, ज्यादा होगा. That is the load is much.
तो इसलिए ये आपका ये जो पॉइंट अगर आप इसमें देखें तो ये लोड जो है जहां तक ये लोड जो है जा रहा है, राइट। अब जब एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंस, द एटम्स स्टार्ट freely flowing inside the material, right? When the atoms start freely flowing inside the material, it means that the resistance will between the atoms will drop, will be less. So the load required in this case is very less. So immediately what happens, the point D, immediately आपका क्या होगा, load drop होगा और you will get the point D, right? So the point D, that point is called the lower yield point. Point D क्या है? Point D is the lower. Point D is the lower yield. Lower yield point D is the lower yield point, right? So इस lower yield point के केस में जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, because the atoms are broken from the bond and they are freely moving inside the material. तो ये जो कर्व होगी इमीडिएटली जहां से जहां पे ड्रॉप होगी, ये समझिए आप। कर्व ड्रॉप क्या होगी, क्योंकि जहां पे आपका जो यील्ड मटेरियल जो है वो यील्ड होना शुरू होगा, तो यील्ड होना शुरू होगा का क्या मतलब है कि वहां पे आपको लोड ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस मटेरियल में ज्यादा होगा, लोड ज्यादा होगा, तो हमें लोड जो है इस पॉइंट पर ज्यादा होगा। और जहां का जो पॉइंट सी है, जहां का क्या प्रोसेस है कि एटम्स जो है आपस में जो बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए थे, दैट विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, ठीक है ना, that will be broken from this point. तो इस केस में हमें क्या होगा, लोड हमें ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, the resistance of the material ज्यादा होगा। और जब एटम्स बॉन्ड से टूट जाएंगे, they will start freely moving. So in that case क्या होगा, आपका लोड कम होगा और at a constant load इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, एकदम लोड ड्रॉप करेगा। अब इस कांस्टेंट लोड के ऊपर ये आपकी यील्डिंग होगी, दिस इज कॉल्ड द यील्डिंग मींस डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोड। तो इसलिए ये आपके कांस्टेंट लोड के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये आपकी क्या होगी, यील्डिंग होगी। तो पॉइंट सी और पॉइंट डी, देयर आर द 2 पॉइंट्स, वन पॉइंट इज कॉल्ड द अपर यील्ड। अपर यील्ड का मतलब पता चला कि अपर यील्ड के ऊपर ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि जहां पे आपको लोड जो है, जहां पे रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसलिए दिस पॉइंट इज देयर एंड व्हेन द बॉन्ड्स आर ब्रोकन द एटम विल स्टार्ट फ्रीली मूविंग इनसाइड द मटेरियल, तो इमीडिएटली द लोड विल ड्रॉप एंड एट दिस कांस्टेंट लोड द यील्डिंग प्रोसेस विल बी देयर, द डिफॉर्मेशन विल बी देयर, दैट इज इन द लार्ज क्वांटिटी। So you can say that the yielding, what is the definition of yielding? Yielding means deformation, plastic deformation, right? Plastic deformation at uniform load, you can say, ठीक है। तो plastic deformation at constant resistance, you can say, at constant resistance जो plastic deformation होगी, this is called the yielding. I think this is clear to you. इसलिए ये आपको horizontal line मिला। अब उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको ले लेता हूं कि इस तरीके से कर्व दोबारा ऊपर जाएगी, राइट। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड ई, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ई। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कर्व किस तरीके से ऊपर जाएगी, राइट। इसको एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। इसमें थोड़ा सा इसमें नोट कर लेते हैं। पॉइंट डी क्या है, पॉइंट डी लोअर यील्ड पॉइंट, राइट। लोअर
डिफॉर्मेशन, हियर क्या होगा, डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोड, डिफॉर्मेशन इन अंडर कांस्टेंट लोड, राइट। इसमें जो डिफॉर्मेशन होगी ये क्या होगी, अंडर कांस्टेंट लोड। दिस इज द लॉजिक पॉइंट। और जैसे आपको बताया मैंने, इसके बाद जो डिफॉर्मेशन है अंडर कांस्टेंट लोड होगी, जब जहां पे पहुंचेगा, देखिए जहां तक क्या होगा, आफ्टर yielding you can say, when the yielding process will complete, or you can say after yielding, what happens, the atoms between the material, they start freely flowing, right? क्या होता है yielding process में, कि जो atoms होंगे, जो bond से break होंगे, वो क्या होंगे, freely flow करना मटेरियल में, freely flow करेंगे in the material, and when they will freely flow in the material, what happens, they will start blocking the path of each other at a point, किसी एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन से फ्लो कर रहे हैं, कोई इधर से फ्लो कर रहा है, कोई इधर से, you can say that the strain is very much there, so you have a very high strain there. So when there is a very high strain there, the atoms start freely flowing inside the material. The deformation is uniformly constant, but it is very large there. So what happens? There is a point, or you can say at one point, these atoms will start blocking the path of each other. When these atoms will start blocking the path with each other, so it means that the further deformation, you will not get the further deformation, क्योंकि इन्होंने अपने पाथ को क्या किया, ब्लॉक किया। Now the point is, this is the yielding process. When the yielding process will complete, what happens? जहां तक तो इन्होंने डिफॉर्मेशन हुई, उसके बाद जो एटम्स थे जो फ्रीली फ्लो कर रहे थे वहां पे, तो क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे का पाथ क्या किया, ब्लॉक किया, और डिफॉर्मेशन जो थी जहां तक ही रही, उसके बाद डिफॉर्मेशन रुकी, राइट। नाउ इफ यू वांट मोर डिफॉर्मेशन, अब पॉइंट क्या है कि अगर आपको और डिफॉर्मेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको और डिफॉर्मेशन चाहिए, यू हैव टू अप्लाई द लोड, और यू कैन से you have to increase the resistance of the atoms in the material. You have to apply the load because they have blocked their path. तो हम इसके बाद जब लोड अप्लाई करेंगे, the curve will go up, means the resistance of the material, now the resistance of the material will increase, and we have to apply the load. We have to apply the more load here. When the resistance of the material will increase, we have to increase the load here, right? So the curve will go up. ये जो प्रोसेस होगी इसके बाद, yielding के बाद जो प्रोसेस होगी, जिसके बीच में क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा, एटम्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, हमें ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा फॉर द डिफॉर्मेशन के लिए। ये जो प्रोसेस होगी जहां से जहां तक, ये जो कर्व आपके ऊपर होगी, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन हार्डनिंग। यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट इज द स्ट्रेन हार्डनिंग? स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है? मींस दैट स्ट्रेन हार्डनिंग मींस दैट द स्ट्रेन इज सो मच इन द मटेरियल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विल इंक्रीज। यू अंडरस्टैंड दैट? द स्ट्रेन हार्डनिंग मींस strain inside the material is so much that the resistance of the material will increase. So you have to apply the more load. You have to increase the load to get the deformation, to get the further deformation. So that curve will go up to this point. थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ because I have so this is point E. तो ये कर्व जो है इस पॉइंट तक
इंक्रीज होगी। ये जो कर्व जो है, क्योंकि इसमें देखिए लोड आप बढ़ा रहे हैं, पहले लोड आपका रेजिस्टेंस जहां पे था, अगेन जो है इंक्रीज द लोड, तो ये कर्व जो है इस तरीके से ऊपर को बढ़ेगी और ये जो कर्व होगी दिस इज कॉल्ड द स्टेन हार्डनिंग, राइट, इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी, दिस पॉइंट ई, दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट पॉइंट. So I think you have understood what is the strain hardening. Strain hardening means, so strain hardening क्या होगा, means so strain hardening means there is so much strain in the material that the resistance of the material will increase, right, and that curve which will show the deformation under strain hardening, this is from this point to this point. You understand this point? तो उसके बाद ये दोबारा कर्व ऊपर जाएगा जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे. जब इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो जो ई पॉइंट होगा आपका, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, राइट, तो जहां पे ई पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगी कर. अब देखिए इसमें इसको इस तरीके से आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट, राइट टू अंडरस्टैंड. So I think up to this point, this is clear. So the point E is the ultimate point. Point E क्या होगा, जब हम जहां से इसका जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. अब स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है, the process of increasing the resistance, right, the process of increasing the resistance, that is called the strain hardening. तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों होता है, because the atoms start freely flowing inside the material during the yielding process, right, and what they will do, they will just start blocking each other path at one point. So at that point the deformation is, there is no deformation then because they have blocked the path. So if you have to increase the deformation, so what you will do during this process, the resistance of the material will increase. तो क्या होगा, तो then you will increase the load to get the deformation. So if you will get the load to get the deformation, ये जो आपकी कर्व होगी, ये जो कर्व, that will start going up and up to this point E, this is point, क्या कहेंगे अब, this is point is called the ultimate point. तो ये जहां तक ये प्रोसेस होगी आपकी क्या होगी, ये this process is called strain hardening, right, up to this point this is clear. Now what is E? तो E क्या होगा, जहां तक आपका क्लियर हो गया. So now you will get the point E. Now so E कौन सा पॉइंट है, this point is called the ultimate point. This point is called the ultimate point, right. जब कर्व आपकी अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर जहां तक पहुंचेगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द अल्टीमेट पॉइंट, एंड इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल दैट विल सडनली रिड्यूसेस. जो मटेरियल का क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, सडनली रिड्यूस, राइट. तो जब क्रॉस सेक्शन मटेरियल का सडनली रिड्यूस होगा, so means the resistance of the material that will also reduce. अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर क्रॉस सेक्शन जो मटेरियल का होगा, जो स्पेसिमेन होगा जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो कर रहे हैं, वो क्या होगा, that will suddenly reduce. And when the cross section will suddenly reduce, what happens, your cross section will suddenly reduce, your resistance will decrease, right, the resistance of the material will decrease. तो ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल जो सडनली रिड्यूस होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एट पॉइंट ई द प्रोसेस इज, यू कैन से नेकिंग.
ये जो अल्टीमेट पॉइंट ई हमें मिलेगा, तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द नेकिंग. जो अल्टीमेट पॉइंट बी, दिस इज कॉल्ड द नेकिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द नेकिंग, राइट. So at point E you can say the cross sectional area is suddenly reduced, right? Cross sectional area is suddenly reduced and the resistance of the material is less, right? So this process is known as necking. This process is known as necking. You understand this? तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज करते जाएंगे, ये कर्व जो है इंक्रीज होती जाएगी. जब पॉइंट ई आएगा, इस पॉइंट ई के ऊपर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट. इसमें क्या होगा कि जो स्पेसिमेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सडनली रिड्यूस होगा. जब क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा तो क्या होगा, उसका मटेरियल का रेजिस्टेंस भी रिड्यूस होगा. तो आपका क्या होगा, मटेरियल का रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, तो यू कैन से द कर्व विल गो डाउन, राइट. कर्व विल गो डाउन and then here is the fracture. ठीक है. जब रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ये अपने आप ये नीचे जाएगी और इस पॉइंट के ऊपर फ्रैक्चर हो जाएगा. सो दिस इज यू कैन से दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट. अब ये जो आपकी कर्व है, दिस इज द कर्व ई पॉइंट, दिस इज द यू कैन से नेकिंग. दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, दिस इज नेकिंग. जहां से नेकिंग स्टार्ट होगी, और यू कैन से दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट. दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट पॉइंट. इससे नेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है. और जहां पे कर्व आपकी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. अब इसमें देखिए, अगर आप इस कर्व को स्टडी करें तो यू विल सी देयर इज अ लार्ज डिफॉर्मेशन हियर इन द डक्टाइल मटेरियल. देयर इज द लार्ज डिफॉर्मेशन, राइट. सो इन द डक्टाइल मटेरियल देयर इज द लार्ज डिफॉर्मेशन. तो इसमें हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए बी सी जो डी, दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो जहां से लेके जहां तक जो पोर्शन होगा, वी विल कंसिडर ये जो रीजन होगा आपका, इस रीजन को कहेंगे हम इलास्टिक रीजन. इसको क्या कहेंगे, दिस रीजन इज कॉल्ड द इलास्टिक रीजन. जहां से लेकर जहां तक जो होगा, दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक रीजन. दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक रीजन, राइट. अब जहां से जहां तक सो दिस इज योर प्लास्टिक रीजन. ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द प्लास्टिक रीजन, राइट. So up to this point, मतलब ये आपका इलास्टिक रीजन था. This is your plastic region. This is your
ये इसको आप कहेंगे स्टेन हार्डनिंग, राइट। इस रीजन को क्या कहेंगे आप? स्टेन हार्डनिंग। इसमें ब्लैक से लिखते हैं, दिस इज द योर स्टेन हार्डनिंग, राइट। और ये जो आपका रीजन होगा जहां तक राइट, सो दिस रीजन इज कॉल्ड द नेकिंग। इस रीजन को क्या कहेंगे? नेकिंग, राइट। दिस रीजन इज कॉल्ड द नेकिंग। दिस रीजन इज कॉल्ड द नेकिंग। तो जहां पे आप देखेंगे तो ये जो आपकी डक्टाइल मटेरियल के केस में जो आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो ड्रा होगी, here you have seen that there is a large deformation here। तो इसमें आपका क्या होगा? लार्ज डिफॉर्मेशन होगी एंड यू विल गेट द 4 पॉइंट्स देयर, यू विल गेट द 4 रीजन देयर। इसमें आपके 4 रीजन होंगे। तो मैं कह सकता हूं ए, V, C and D, right? A, B, C and D. These points are very close. These points are very close to each other. So the reason between these points is the elastic region, right? ये फर्स्ट पॉइंट, ये कर्व जो है so this is your plastic region from here to here. So from here to here, ठीक है ना? सपोज मैं इस पॉइंट को L ले लेता हूं, राइट? तो DL है ना, D to L, this is the plastic, D to L, this is plastic region or plastic deformation. So L to E, this is stain hardening, right? ठीक है ना? तो L to E, this is stain hardening, and E to F, ये आपका पॉइंट F है, राइट? सो E to F, तो E to F क्या होगा? नेकिंग, राइट? E to F, that is necking region. E to F, that is necking region. So you can say here the total deformation, जो टोटल डिफॉर्मेशन होगी इसमें, राइट? सो टोटल डिफॉर्मेशन देखिए, इलास्टिक रीजन प्लस प्लास्टिक रीजन
प्लस स्ट्रेन हार्डनिंग प्लस नेकिंग, राइट। तो ये 4 प्रोसेस इसमें लगेंगे एंड देन यू विल गेट द टोटल डिफॉर्मेशन। सो द टोटल डिफॉर्मेशन इज total deformation elastic deformation plus, or you can say elastic deformation region and elastic deformation plus plastic deformation plus stain hardening plus necking. Stain hardening plus necking, राइट। तो J डिफॉर्मेशन होगी एंड दिस इज वेरी लार्ज। दिस कर्व इज फॉर द, ये कौन सी कर्व है? फॉर द लो कार्बन माइल्ड स्टील, है ना, डक्टाइल मटेरियल। तो ये डक्टाइल मटेरियल की कर्व जो लो कार्बन माइल्ड स्टील की कवर्ड कर्व थी, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट एंड आई थिंक every point I have tried to give you a good concept so that you can understand it well, that how we have draw this curve. और मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे कंसेप्ट जो है each and every point that is explained very well, और जो मुझे आपका रिस्पॉन्स लगा, I think you have understood it well. तो this is about the ductile material, the curve for the ductile material, and from these different points, if you will calculate the different points, you will find the different material properties of the specimen, ठीक है? You will find the material properties. तो ये पॉइंट हमें कर्व के ऊपर कैलकुलेट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स कहां के ऊपर होंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट यू विल फाइंड द डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज। तो जे कर्व जो थी ये आपकी डक्टाइल मटेरियल के लिए होगी, ठीक। एंड नाउ नेक्स्ट कर्व जो है इसको आप याद रखिए, देखिए इसको आई विल आल्सो एक्सप्लेन। सो ये जो आपका वाई एक्सिस है, दिस इज योर सिग्मा, इसमें हम क्या लेंगे? स्ट्रेस लेंगे, दैट इज इन MPa मींस मेगापास्कल स्ट्रेस। दिस इज अगेंस्ट द वाई एक्सिस एंड द एप्सिलॉन स्ट्रेन दैट इज in the x-axis, and then we will take the percentage of strain. So first point क्या है? Stress is directly proportional to strain. If we will apply the load on there, so we will get the straight line here from O to A. This is up to the proportional limit. Proportional limit means where the stress is directly proportional to strain. So you will get the straight line here. Then after applying the load from this point, the curve start increasing, and that will slightly curved. That will slightly bend down. That will slightly curve, and then you will get the point V. Point V, that point is called the elastic limit. Means up to this point, the deformation is very less. The deformation is temporary. You can, right? And if you remove the load, what happens? क्या होगा? The material will come to its original position because your sigma is 0 in this case, your epsilon is in 0 in this case. Now up to this point, there is elastic deformation. Now you come again increase the load. When you go on increasing the load, and if you will take some point on the curve, increasing curve, right, and if you remove the load, because from behind the point V there is a plastic deformation. Behind the point V there is a plastic deformation, and if you will increase the load, the curve will go up. And if you will remove the load at this point, you will see that the unloading curve, the curve will drop down where the sigma is 0 but epsilon does not equal to 0. क्यों epsilon 0 नहीं होगा? Because ये आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, तो इसमें सिग्मा तो 0 होगा, epsilon 0 नहीं होगा, क्योंकि up to this जो डिफॉर्मेशन होगी
या फिर इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी. इफ आई से इलास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू दिस पॉइंट दैट इज 0.1 एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है 0.2 है, तो टोटल परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी 0.3%. And if I remove the load, what happens? The elastic deformation is 0, but the plastic deformation is there. So if you will drop the line here and this line is parallel to the line OA, this will meet at this point here, right? So जहां पे जो point मिलेगा आपको, you can say ये आपका क्या point होगा? This point is your plastic deformation, जहां पे 0.2% ये जो आपको point मिलेगा, this is the plastic deformation. जहां तक clear है? Now we keep on increasing the load. Then you will get the point C. C is the upper yield point. Yield point क्या चीज है? Where the atom will start to free from the bond, right? The bonds between the atom will start to break down, right? So here the resistance is very high. This is the upper yield point. और उसके बाद जब एटम फ्री होंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा. At you can say at a small low resistance इसका डिक्रीज हो गया इमीडिएटली, तो ये कर्व विल डिक्रीज. तो ये दिस इज द अपर यील्ड पॉइंट, दिस इज द लोअर यील्ड पॉइंट, एंड देन द यील्डिंग प्रोसेस जो होगी दैट इज द आर एट द कांस्टेंट लो. सो यू विल गेट द हैरियर लाइन हियर. इस पॉइंट के ऊपर द एटम्स आर फ्री, दे विल स्टार्ट ब्लॉकिंग द वे. Then what happens? The resistance will increase. If you want the more deformation, you have to apply the load more. So you will increase the load. और ये जो कर्व आपको मिलेगी, this curve is called the strain hardening curve. कर्व जो है इंक्रीज होगी and up to the point E, that is called the ultimate point. इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि जो मटेरियल है उसकी नेकिंग हो जाएगी. नेकिंग का मतलब क्या होगा कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मटेरियल का वो क्या होगा? इमीडिएटली कम हो जाएगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया लेस होगा तो मटेरियल अपने आप जहां से क्या है रेजिस्टेंस उसका कम होगा तो कर्व विल बेंड डाउन एंड देन द पॉइंट F will come where the material gets fractured. So this is all about your the stress strain curve of the ductile material. I think you have understood it well. Now I will take the curve for the brittle material. Let us understand that.